Yes, good morning students. Let us start lesson 6 of civics, the role of police and the courts. Today we are going to study about the role of police, role of courts, the public prosecutor and filing an FIR. The total contents in our chapter, these are 4 contents. First of all, we will discuss what is the role of police. How police helps us? Police, there are certain duties of police. Number 1, it maintains law and order, and it is a main law enforcing agency. पुलिस ही है जो लोगों को लॉ को एनफोर्स करती है कि लोगों को मानना पड़ता है. अदरवाइज आप देखते हो कि अगर आप ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते आपका चलान हो जाता है. तो पुलिस के डर से ही हम रूल्स को फॉलो करते हैं. और सारे लोग तो नहीं होते, कुछ अपने आप से करते, जो नहीं करते तो पुलिस एनफोर्स करती है. तो पुलिस इज द मेन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी. और क्या ड्यूटीज़ हैं पुलिस की? दे प्रिवेंट क्राइम, इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम. अगर क्राइम हो जाता है देन पुलिस इन्वेस्टिगेट्स इट एंड अपहोल्डिंग द लॉ. दीज आर द ड्यूटीज ऑफ पुलिस, और दिस इज रोल ऑफ पुलिस. In India, every district has a district collector who is responsible for maintaining law and order. The superintendent of police and other police officers work under the district collector. Who comes under district collector? Superintendent of police and police officers. Those work under district collector. Each district is divided into 5 or 6 subdivisions. Each district is divided into 5 or 6 subdivisions and placed under charge of a deputy superintendent of police. Each police station has an inspector of police, sub-inspector, assistant, sub-inspector and head constable. We can do like this. District collector, who comes under district collector? Number 1, superintendent of police. Police officers. Then police officers, and again each police station have an inspector of police, sub-inspector, then assistant sub-inspector, and head constable. Head constable. So in each police station, these 4 posts of police are there. Police station has 1 jurisdiction. So 1 jurisdiction is given and police station only has duty to see that jurisdiction and it works for that jurisdiction. Now guidelines for the police. The police is expected to uphold the law.
लॉ को के मुताबिक अगर कोई काम कर रहा है तो पुलिस इंटरफेयर नहीं करती. अगर कोई लॉ को ब्रेक करता है then comes the role of police. Supreme Court has issued some guidelines for the police in order to protect the fundamental rights of citizen. तो जो पुलिस होती है वो ऐसे नहीं है कि whatever they want they can do. Some guidelines are there by the Supreme Court for the police. Time and place of crime must be recorded. That record should be with the police. Number 2, the accused must be made aware of his right. जिसको भी पकड़ा है, जो भी accused है, उसको अपने rights का पता होना चाहिए. जब भी किसी को accused को arrest किया जाता है, his relative or her relative is informed. ऐसे नहीं कि आप अकेले को कहीं भी arrest कर लो और किसी को घर में पता ना हो. Their relative is informed and the accused should be given the right to defend by a legal practitioner. जो accused होता है वो अपने आप को जैसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक एडवोकेट करता है, तो लीगल प्रोसिक्यूटर वो कर सकता है जो भी accused होता है. मैजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर accused को प्रेजेंट किया जाता है. ये नहीं है कि आप 4 दिन पुलिस स्टेशन में ही उसको रखा हुआ है. विद इन 24 आवर यू हैव टू प्रेजेंट इन द कोर्ट. ये पुलिस को बोला जा रहा है, पुलिस को प्रेजेंट करना पड़ता है. पुलिस इज नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट एनीवन. ये भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि ये नहीं कि जितनी देर कोई पुलिस के पास है तो उसको टॉर्चर किया जाए. एंड कोई भी पनिशमेंट पुलिस नहीं दे सकती है पुलिस को. No punishment can be given by the police. That is the work of court. Confession during police custody cannot be used as evidence. अगर कोई भी accused पुलिस स्टेशन में मान जाता है कि हाँ मैंने क्राइम किया है, तो उसको कुछ भी उसका प्रूफ नहीं होता. उसको कोर्ट में अगर वो मानता है तभी accused का वो एविडेंस बनता है, अदरवाइज नॉट. A boy under 15 of age woman cannot be called to police station only for questioning के लिए. 15 years से छोटा boy और a woman can't be called to the police station. All these rules are given by Supreme Court to the police. Then what is FIR? FIR is first information report for the crime. It is the first information about an offence recorded by the police on police officer on duty. FIR. This definition can come. So FIR. What is FIR? It is the first information report on an offence recorded by the police officer. द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कौन दे सकता है? जो एग्रीव्ड पर्सन है, जिसके साथ क्राइम हुआ है, विक्टिम है, या उसके रिलेटिव्स दे सकते हैं, या उसको कोई नोन भी दे सकते, इवन अननोन पर्सन भी दे सकता है. एंड पुलिस तभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है जब FIR लॉन्च हो चुकी हो. उससे पहले कोई लीगल एक्ट नहीं किया जाता. तो फर्स्ट थिंग, हाउ टू फाइल एन FIR. Steps are given for the launch of file for FIR. The person who has to file an FIR has to go to the police station. तो सबसे first of all the person has to go to police station to meet the officer in charge of the police post. Then he narrates every detail related to the offence. This is recorded by the officer. फिर step by step सारा crime बताया जाता है और कोई भी इंसिडेंट बताया जाता है जिसकी की रिकॉर्डिंग की जाती है बाय द ऑफिसर. द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंप्लेंटेंट इज साइंड बाय हिम. जब तक उस पर साइन ना हो जिसने कंप्लेंट की है उसको माना नहीं जाता. तो नीचे साइन लिए जाते हैं कि हाँ ये वाला जो भी डिटेल्स हैं दैट इज गिवन बाय मी. फिर उसको दैट FIR इज एंटर्ड इन ए बुक which is to be kept by the officer in charge. उसको एक एज ए रिकॉर्ड रखा जाता है एक नोटबुक में नोट करके. ऑफिसर
once an FIR is filed, case is registered, then investigation start. FIR is filed only then the case is registered और उसके बाद ही सारी investigation start होती है. There are two types of offences. One is cognizable and the other is non-cognizable. अगर तो jurisdiction के अंडर होती है वो cognizable होती है, अगर jurisdiction से बाहर होती है, jurisdiction of court में होती है that is cognizable, और अगर नहीं होती तो non-cognizable कहलाती है. ये two types के offences होते हैं. तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होती है उसको तो पुलिस डायरेक्टली फाइल कर लेती है उसका FIR. बट इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पुलिस नीड परमिशन ऑफ कोर्ट टू फाइल एन FIR. अगर कोर्ट की जुरिडिक्शन में नहीं होती तो उसके लिए कोर्ट से परमिशन ली जाती है. एंड व्हाट इज चार्जशीट? चार्जशीट फाइल की जाती है जब इन्वेस्टिगेशन होती है. तो जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, कंट्रोल ऑफ प्रोसीडिंग्स होती हैं पुलिस की, तो पुलिस इज टू कंट्रोल द प्रोसीडिंग्स, उसको चार्जशीट बोला जाता है. जो कि द इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है वो सारे एविडेंसेस, सारे सफिशेंट एविडेंसेस को कलेक्ट करता है जो कि फैक्ट्स ऑफ क्राइम के साथ या केस के साथ उसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं ताकि एक्यूज के एलिगेशन को प्रूव किया जा सके. ऐसे एविडेंसेस इकट्ठे किए जाते हैं. वंस द चार्जशीट इज प्रिपेयर्ड द केस गोज टू द कोर्ट. उसके बाद कोर्ट का फंक्शन स्टार्ट होता है. पहले FIR, फिर उसको रजिस्टर करना, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करना और चार्जशीट तैयार करना. ये चार्जशीट जो है दैट गोज टू द कोर्ट फॉर द further action. After this starts the role of court. Police is responsible for maintaining law and order in the state, but they cannot award punishment. तो ये किसका काम होता है punishment देना? This is the work of court. They can only arrest the person. They can only investigate the procedure. The accused is to be presented before a court of law. Then comes the public prosecutor. Public prosecutor कौन होता है? जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट मिलता है. A public prosecutor is a gazetted officer who has to play an unbiased and impartial role in order to ensure a fair judgment. That is called a minister of justice. उसके बाद the court duty of a public prosecutor is to support the court in finding the facts. जो भी क्राइम को फाइल किया गया है उसके फैक्ट्स को पता करना ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है. उसमें अक्यूज के आर्ग्यूमेंट्स सुने जाते हैं एंड एविडेंसेस दिए जाते हैं एंड फिर उसके बेसिस पे कोर्ट हैज़ अ राइट टू डायरेक्ट ए पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट अ पर्सन एंड प्रोड्यूस हिम बिफोर द कोर्ट बाय इशूइंग ए वारंट अगेंस्ट हिम. तभी उसको वारंट इशू होते हैं अगर कोर्ट के ऑर्डर्स हों. वारंट होते हैं अरेस्ट करना किसी को, उसका ऑर्डर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड वारंट. जब जजमेंट आ जाती है, अगर कोई पार्टी डिससेटिस्फाई होती है तो हायर कोर्ट में अपील की जा सकती है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो केस है वो स्टेप बाय स्टेप सुप्रीम कोर्ट तक मूव कर सकता है. इफ सेशन जज अवॉर्ड्स ए डेथ सेंटेंस टू द अक्यूज्ड देन द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू हियर एन अपील. तो अगर उसको सेशन कोर्ट में सेशन जज ने उसको डेथ पेनल्टी भी दे दी तो वो अपील कर सकता है हायर कोर्ट में. फेयर ट्रायल, तो हर जो भी इंडियन सिटीज़न है उसको ट्रायल के लिए गारंटी है कि उसको फेयर ट्रायल मिले, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये उनको राइट दिया है. द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स फेयर ट्रायल एज फॉलोज. क्या क्या किया जाता है कि सो दैट अक्यूज्ड या जो अक्यूज्ड नहीं है उसको लगे कि जो भी हुआ है, जो भी पनिशमेंट मिली है, एटलीस्ट उसका फेयर ट्रायल हुआ है. 1 कॉपी ऑफ चार्जशीट एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस शुड बी गिवन.
द ट्रायल शुड नॉट बी हेल्ड इन सीक्रेट प्लेस पे ट्रायल नहीं होना चाहिए, वो किसी के सामने होना चाहिए. हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड ऑल्सो. इनफ टाइम शुड बी गिवन टू क्वेश्चन द विटनेस. विटनेस से कुछ भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं और उसको काफ़ी टाइम दिया जाता है. एक्यूज कैन फाइट इन डिफेंस बाय प्रेजेंटिंग विटनेसेस से वो अपना क्राइम को या अपनी फाइट को डिफेंस कर सकता है. एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूटेड विटनेसेस. इस तरीके से फेयर ट्रायल होता है. एंड जज शुड रिमेन इम्पार्शियल एंड इम्पार्ट अ फेयर वर्डिक्ट. तो दिस लेसन फिनिशेस हियर. नाउ what is your homework? Do MCQs matching the following and the short question answers. Okay, thank you so much.